आइए, इससे पहले कि हम आराधना में चले, प्रार्थना में चले, मेरे साथ भजन संहिता उसका 103 अध्याय को निकाल ले। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। सो आइए, जब हम उसकी उपस्थिति में हैं, हमारे पास कितने ढेर कारण हैं, हम आशीषों को गिन सकते हैं। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। और जैसा भजन संहिता का लेखक कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। आइए आज हम उसको धन्य करें। वो हमारा परमेश्वर पिता हमसे प्रेम रखने वाला है। उसने पाप को हमसे दूर कर दिया, हमारे मन की लालसाओं को पूरा करता है। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। इससे पहले यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Church, let's tell him. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Worship you, God. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, worship you, turning lives around. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, let's tell him. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
are to us. You're a God who never fails us, God. You're a God who goes before us. You prepare the way for us, God. You have promised, O Lord, that you will never leave us and never forsake us. Oh, we are grateful, Jesus. Church, agar aaj aapki yahi gawahi hai, if this is your testimony, then sing with me. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working, oh Lord, in my life. You are working day and night. Let's sing it together. Yes. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Testify. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, that is who you are to me, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes. That is who you are. 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 Jesus. Lord, we call on you, God, because you are everything that I will ever need in my life, oh God. Lord, it's only you who can satisfy, oh God. Lord, we can go anywhere. We can go anywhere searching, oh Lord. But we know that it's only you, oh God. You're more than enough for us. यीशु तू हमारे लिए काफी है. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. आप इतने महान हमारे परमेश्वर हैं. ओ प्रभु, आपने जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, सब कुछ सृष्टि किया है, पर प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया है. धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस बहुमूल्य प्रेम के लिए, ये बहुतायत का प्रेम के लिए प्रभु. Thank you, Jesus, for everything that you are for us, God. Thank you so much, oh Lord, for your amazing love. Oh Lord Jesus, you're more than enough for us. We give you that glory, God, that is due unto you. Oh Jesus. प्रभु हमारे जीवन में तू सर्वोच्च है. Yes, Lord Jesus. सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा. एक बार फिर से हम कहेंगे,
सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च है प्रभु तू हमारे जीवन में। यस, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर तू यीशु राजा, सुंदर यीशु राजा, वो सुंदर यीशु राजा। सर्वोच्च। सर्वोच्च तू, आइए कलीसिया से हम उसको कहेंगे। पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर
सर्वोच्च है मेरे जीवन के लिए. You're more than Lord. You're more than any other priority in our lives, oh God. Oh Jesus, we worship you, God, for who you are, oh God. For you are number one, oh Lord, in our lives, oh God. Oh, तू पवित्र 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 प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं. आइए कलीसिया अपने अपने मुंह खोलेंगे. वो हमारे जीवन में सर्वोच्च है, वो हमारी स्तुति और प्रशंसा है. He's worthy, oh God. He's worthy. He's worthy of every praise that rises unto him. He's worthy. Yes, Lord Jesus. आइए कलीसिया उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं. You love us, oh God. We thank you, Jesus. We thank you. We thank you for who you are. Yes, Lord Jesus. आइए कलीसिया हम उसकी आराधना करें, अपने अपने मुंह को खोले. Oh Jesus, you are everything to us, oh God. You are everything to us, Lord Jesus. तेरे ऊंचा नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे सन्मुख हम आते हैं, तेरी आराधना. Oh जय जयकार. मेरी सारी जरूरतों के लिए प्रभु. Oh Jesus, you are everything that I need, God. We thank you, Lord. Yes, Lord. Jesus, we sing unto you, oh God. Oh, we sing unto you. Oh, we sing unto you, O Lord, a love song. Oh, we sing unto you, O God. We sing unto you. We sing unto you, O God, a song of We love you, Lord, because you first loved us. Yes, Lord. Thank you for your love. So amazing. Yes, Lord, you have welcomed me, O God. Jesus. Amazing love that welcomes me. The kindness of mercy that bought with love wholeheartedly my soul undeserving. Church, let's tell him today, God, you're so good. God, you're so good. Yes, Lord, you are. God, you're so good. You're so good too. Let's tell him once again, church. God, you're so good. We worship you, God. God,
during suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Thank you, Jesus. Yes, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sing with me, church. Oh God, you're so good. Yes, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Let's sing in Hindi now. यीशु अच्छा है, Yes, यीशु तू अच्छा है. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। एक बार फिर से गाएंगे हम. यीशु अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है. यीशु अच्छा है, मेरे जीवन के हर दिन प्रभु. यीशु अच्छा है, अच्छा है Jesus, you're so good to me. so good. Oh, you're so good to me, Lord. You're so good to me, Lord. Thank you, All the days of my life, every hour, every minute, every second, you're so good to me. आइए कलीसिया, हमारे भला परमेश्वर को हम आराधना करें, उसको धन्यवाद दें. उसकी करुणा सदा की है. He is too good to us. वो भला है, वो अच्छा है. Oh yes, Lord. Oh Jesus, God, you're so good to me. Oh, you're so good to me. All the days of my life, I will praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness in my life. Yes, Lord. प्रभु आप बड़े और हम घटे. प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हैं. आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु. विलंब से कोप करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है. हम धन्यवाद देते हैं. एक पिता के समान प्रभु आप हमें संभालते हैं. हम धन्यवाद देते हैं. थैंक यू फॉर योर लव गॉड. अगर ये आपका प्रेम नहीं होता तो आज हम कहाँ होते प्रभु, कहाँ भटक रहे होते परमेश्वर. पर यह आपका प्रेम है परमेश्वर पिता, जिसके कारण आज हम आपकी उपस्थिति में हैं. धन्यवाद देते हैं प्रभु. थैंक यू जीसस. थैंक यू सो मच ओ लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं. आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे बीच में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो.
धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कितना अच्छा है, आमेन। हम लोग आज सुबह फिर से हमारे जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें उस नींद से जगाया और एक साथ मिलकर कलीसिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का देह में आकर एक साथ कॉर्पोरेटली वर्शिप करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये मौका, ये समय सब जीवन में लाया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सारे गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हर एक कार्य जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो हो रहा है, परमेश्वर गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर कर रहा है। और परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, और कभी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर हमारे साथ साथ संग है। हम आज जो भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। जैसे पौलुस कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हम सब के लिए यही परमेश्वर का अनुग्रह हर दिन हमारे जीवन जीने के लिए, हमारा जो विश्वास का दौड़ने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हम अपना हृदय को खोलेंगे, ठीक है, अपना आंखें, अपना जो कान, जो आत्मिक का कान, आंखें, हृदय जो है खोलेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारा बीच में काम करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारे बीच में है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि जब हम आपके लोग जब तेरे स्तुति प्रशंसा करके तेरे नाम को ऊंचा जब उठाते हैं तो तू हमारे बीच में उपस्थित होता है। प्रभु जी, अब हम आपका वचन से सुनने के लिए हम तत्पर है। हमारे हृदय खोलते हैं प्रभु जी, हमारा कान, हमारा प्रभु आके हम खोल के रखते हैं। प्रभु तू छू ले ताकि हम सुन सके प्रभु तेरे बातों को और देख सके जो बात आप हमसे दिखाना चाहते हैं, और सुनने के बाद, देखने के बाद हम समझ कर सके। प्रभु हम सबको, या बैठे हुए सबको, पवित्र आत्मा तू हमसे बात करे। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करे। हर एक थकान, हर एक नींद से यीशु के नाम से हम हर एक बात जो हमें आपका वचन सुनने से अलग करता है, हम बांधते हैं, हम कैंसिल करते हैं। हर एक डिस्ट्रैक्शन को प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नाम से हटाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज जो हम आपके सामने में रखना चाह रहा है वो बहुत सिंपल, बहुत कॉमन, हम यहाँ तक कि हम लोग गाता भी है, ठीक है ना, संडे स्कूल में गाता भी है। बहुत छोटा से यीशु मसीह का एक दृष्टांत है, ठीक है। यीशु मसीह अपना संदेश, वो पहाड़ी को उपदेश, ठीक है, देते, ठीक है, उसका जो उपदेश को क्लोज करते हुए, खत्म करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बात कहकर खत्म किया है। वो भी बहुत सिंपल है लेकिन करने में बहुत दिक्कत है। सो आज नॉट एग्जैक्टली प्रचार, बट हम सब, ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव आप समझता भी है, लेकिन आज फिर से इसी जगह में हम लोग रिविजिट करेंगे और हम अपना आप को उस पर डालकर, ठीक है, अपना आप को जांचने की कोशिश करेंगे। मैं अपना आप को भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कितना ये कर रहा है, ठीक है। मेरा मसीह का जीवन में सच में ये जो यीशु मसीह अपना प्रचार को जो क्लोज करते हुए हमें कंक्लूजन में जो बताया बात हम कर रहा है कि नहीं, इस बात को देखने के लिए कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू टर्न टू द बुक ऑफ मैथ्यू। हम मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय में, ठीक है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे 24 से लेकर 27, हिंदी में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा
क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली हुई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। कितना लोग इस बात को या तो इसी पोर्शन के बारे में कितना लोग गाया है? ये गाना कितना लोग को आया है? ठीक है, बच्चे लोग गाता थे, है ना? बुरीमान ने बनाया चट्टान पे अपना घर। ठीक है, हम लोग ये संडे स्कूल में गाते थे। ठीक है, लेकिन आज जो हम गाते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो कितना करते हैं उस बात को हम अपना आप को जांचेंगे। ठीक है, इसलिए हम कह रहा है हम सब चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? आप ये बात को सोच लीजिए कि आप वो पहाड़ में है और यीशु मसीह आपका सामने में, हमारे सामने बैठा हुआ है और यीशु मसीह इस बात को कह रहा है। ठीक है, लेट अस गो बैक, ठीक है, टू द माउंट। ठीक है, एंड ही इज प्रीचिंग टू अस। वो फिजिकली वो हमें प्रचार कर रहा है, ऐसे आप सोचिए। और यीशु मसीह ये बात को कह रहा है। हम जानते हैं यहाँ में इट इज टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ हाउस, बिल्डिंग योर हाउस अपॉन द रॉक। ठीक है, वो चट्टान के ऊपर में आपके घर बनाने के बारे में यीशु मसीह कह रहा है। ये दृष्टांत क्या है? आपका घर या तो आपका जीवन चट्टान पर या तो वो बालू पर, ठीक है, बनाने के बारे में यहाँ में दृष्टांत दे रहा है। सो व्हाट वी गोइंग टू टॉक इज अबाउट, ठीक है, द हाउस ऑन द रॉक। 2 महीना पहले, ठीक है, गुवाहाटी में फ्लड बहुत आया था। ठीक है ना? और हम जानते हैं 1 सप्ताह स्कूल भी छुट्टी था। हम लोग हर शाम वहाँ में जाकर देखता था कि पानी चला गया कि नहीं चला गया। ठीक है ना? और हम ये भी कहता था कि पानी थोड़ा और रहे ताकि स्कूल छुट्टी हो। लेकिन कभी कभी वो सोचता था कि दुख लगता है बाकी लोग कैसे सफर कर रहा है। ठीक है ना? और आप जानता होगा वो अर्थक्वेक आया था, बहुत सारा बिल्डिंग क्रैक हुआ था। ठीक है, जब हम ये फ्लैट में जो शिफ्ट करने वाले ही थे, तब हम जाके बात किया, बड़ा से क्रैक है और हम लोग शिफ्ट करने वाला है। तो हम लोग उसको देखकर हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्या करे क्या नहीं करे। तब वहां में केयर टेकर बोल रहा था, हर किसी से नहीं देखते पैर ना उसका नींव के लिए बोल रहा था, मजबूत होने से कुछ नहीं होगा बोल रहे थे। सच में फाउंडेशन, जो नींव जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, यू हैव पीस एट हार्ट। आपका हृदय जो है शांति हो जाता है। सो अपना घर के बारे में जब सोचकर, अगर वो नींव स्ट्रांग है, तो उस सॉलिड रॉक में आपका फाउंडेशन वहां से शुरू किया है, ठीक है, वहां में बारिश तूफान टकराएगा तो गिरेगा नहीं। ये बात जब आप जानते हैं तो आपका मन, ठीक है, शांति रहता है। आपका आध्यात्मिक, आपका आत्मिक का घर के बारे में आप क्या सोचता है? क्या आपने कभी आपका आत्मिक का घर का नींव के बारे में चिंता किया है? आज इस बात को हम, ठीक है, अपना हमारे सामने में रखना चाहते हैं। ठीक है, वो जो स्पिरिचुअल हाउस, वो जो आत्मिक का जो घर आपका जीवन जो बना रहा है, जो आप तूफान को टकराएगा, फॉर श्योर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ में कहता है पानी, बारिश आएगा, बाढ़ आएगा और क्या आएगा? आंधी तूफान आएगा। आप सब एग्री करेगा। सो व्हेन वी वांट टू ट्रेन आवरसेल्फ, ठीक है ना, हम किसी भी चीज हो, चाहे खाना पकाने के लिए हो, चाहे स्विमिंग करने के लिए हो, चाहे, ठीक है, गिटार सीखने के लिए और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए हो, जब हम मन होता है तो अपना आप को हम ट्रेन करता है और हम, ठीक है, प्रैक्टिस भी करता है और बहुत आसानी से पकड़ भी लेता है। ठीक है, इस बात को आप सब मानेगा ना। लेकिन जब हम परमेश्वर का निर्देश, जब हमारे लिए संडे आफ्टर संडे जब परमेश्वर हमें देता है, या तो एवरी डिवोशन, एवरी मॉर्निंग दैट यू आर डूइंग, ठीक है, जब परमेश्वर का निर्देश आपके लिए बहुत साफ साफ जब आता है, तो क्यों हम उन बातों को, ठीक है, बहुत जल्दी से पकड़ के अपना जीवन में जो बदलाव लाने के लिए, ठीक है, नहीं कर पाते हैं? ठीक है, इस बात को आज सोचने का बात है। यहाँ में जो यीशु मसीह जो कह रहा है, द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस,
द टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। जो पहले घर जो है कहा है, इट इज बिल्ड ऑन द रॉक, ठीक है, सॉलिड रॉक बेड में बनाया हुआ है। एंड यहाँ में हम लोग को समझना चाहिए कि यहाँ जो तूफान, जो बाढ़ और जो बारिश जो कह रहा है, वो सिर्फ एक घर के लिए नहीं है, दोनों घर के लिए बराबर है, ठीक है, दोनों घर के लिए बराबर। आप देखिए 25 पद में जो चट्टान के ऊपर जो बनाया है, उसके लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। सो ये चट्टान में बनाया हुआ घर के ऊपर ये आता है, ठीक है। और वर्स 27 पर ये जो बालू में बनाया हुआ घर के लिए भी क्या कहता है? और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। सो ये दोनों घर के लिए प्रभु यीशु मसीह सेम बात कहता है। क्या आते हैं? वो बारिश आएगा, बाढ़ आएगा और आंधी तूफान आएगा, दोनों घर के लिए। द सेम ट्रायल, द सेम टेम्पटेशन विल कम फॉर बोथ द हाउस, ठीक है ना, दोनों घर के लिए आएगा, ठीक है। सो यहाँ में हम लोग को इस बात को जानना है कि आप अपना घर चट्टान पे बना दिया, मतलब ये नहीं है कि आप वो बारिश से, वो तूफान से, वो आंधी, वो बाढ़ से आप बच जाएगा, ठीक है, इनसे आप बच जाएगा, ये नहीं कह सकता है, ठीक है। सो आप ये नहीं कह सकता है अब हम क्रिश्चियन बन गए, आप मसीह बन गए, मतलब ये बात नहीं है कि आपका जीवन में कभी भी समस्या ही नहीं आएगा, कभी भी बीमारी नहीं आएगा, कभी भी वो जो मुश्किल समय को सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये अगर कह रहा है तो ये गलत गॉस्पेल है। यीशु मसीह क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों घर है, दोनों सुनता है, दोनों सेम वचन सुना है, लेकिन जो घर जो है जो बनाते हैं तो अलग अलग नींव में बनाता है और वहां में ये तूफान, आंधी, बारिश आता है, ठीक है, तब वहां में एक गिरता है, एक खड़ा होता है। सो आपको एक कहना चाहता है कि जो मसीह जीवन जो है, इट्स नॉट जस्ट आस्किंग जीसस to your life to come into your life and then finish, ठीक है, अभी से सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा मसीह जीवन से बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह के पीछे चलना, या तो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना क्या है? तूफान आएगा, आंधी आएगा, बारिश आएगा, आपका घर को टकराएगा, आपका घर को टकराएगा, लेकिन प्रश्न ये है कि आप किस नींव के ऊपर आपका घर बना रहा। यहाँ में जो स्टॉर्म जो है इट इज कॉमन टू अस ऑल, सबके लिए बराबर है, तो चाहे बालू वाला घर हो चाहे चट्टान के ऊपर वाला घर हो, दोनों के लिए तो बराबर है। बाइबल कहता है 2 तीमुथियुस 3:12, 2 तीमुथियुस 3:12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ, मतलब यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का जो चेला बनकर उसके मार्ग में जो चलना चाहता है, Jesus will be persecuted. क्या आप तैयार हैं इस मार्ग में चलने के लिए? क्योंकि ये बाइबल कह रहा है, ये हम नहीं कह रहा है, बाइबल कह रहा है, ठीक है ना। वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट्स गोइंग टू कम, ठीक है, आपका मार्ग में आएगा, आपका, ठीक है, सफर, आपका जो जर्नी में आप मिलेगा ही मिलेगा। तूफान तो तैयार है आने के लिए, ठीक है, वो आंधी तैयार है, वो बाढ़ भी तैयार है, वो बारिश जो है वो भी तैयार करके रखा है। क्या आप उसको टकराने के लिए तैयार है कि नहीं? इस बात को हमें पूछना चाहिए। इनफैक्ट कोई लोग ऐसे लोग हैं जब मसीह में आने के बाद, ठीक है, डबल ट्रबल, ठीक है, हमारे जीवन में, ठीक है, फेस करने वाला लोग भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मसीह जीवन जीना, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मसीह में आ गए मतलब आपका जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी कभी जब परमेश्वर ये अलाउ करते हैं
तो हम ठीक है हमारा जीवन जो है और भी मजबूत बन जाता है, ठीक है ना। ये जो तूफान आंधी जो है हमारा जो असलियत जो क्वालिटी जो है उसको दिखाता है, ठीक है ना। आप भी जब सोचिए 2 घर है, आपको बोले कि ये दोनों का नींव का जो डिफरेंस है आप बताइए, और वो वहाँ में कोई तूफान नहीं आया है और फ्लड नहीं आया है और कोई बारिश नहीं आया है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मौसम अच्छा के अंदर में आप वो घर का जो नींव का डिफरेंस नहीं बता पाएगा। लेकिन जब तूफान आएगा, तूफान टकराएगा, बारिश टकराएगा और ये बाहर आएगा, तब आप बता पाएगा कि ये वाला मजबूत है, ये वाला ढीला है, आप बता पाएगा। ठीक वैसे हमारे जीवन में भी कभी कभी ये सब जो परखने का चीज जब आते हैं तो हमारा नींव, ठीक है, को दिखाता है, हम सच में प्रभु के लिए क्या है वो दिखाता है, ठीक है ना। सो इफ वी लाइक बिल्ड आवरसेल्फ, ठीक है, इन द सॉलिड रॉक, ठीक है, उसी चट्टान पर अगर हम अपना नींव रखा गया है तो कभी भी हम गिरेगा नहीं। पहला कोरिन्थियस 3:12 से 15 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 3:12 से 15। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। सो यहाँ पर भी पौलुस वो नींव जो फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमारा मसीह का जीवन जो है, हमारा शुरुआत, हम हमारे जीवन, हमारा घर जो है सही जगह में बनाने का बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना। अगर हम गलत जगह में, गलत फाउंडेशन में बनाएगा तो जब वो टेस्ट आएगा, वो आंधी तूफान जो बारिश आएगा, तो वहाँ में हम, ठीक है, भी नाश हो जाएंगे, ठीक है, हम भी नाश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ में तो डिफरेंस जो है, इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव स्टॉर्म एज अ क्रिश्चियन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ में डिफरेंस ये है, अंतर ये है कि एज अ क्रिश्चियन, एज विश्वासी होने के नाते क्या है, ये सब आएगा आपका जीवन में, ये सब आपको टकराएगा, लेकिन यू हैव अ फाउंडेशन दैट होल्ड्स यू अप थ्रू द स्टॉर्म, ठीक है। उसी फाउंडेशन है जो आपको पकड़ के रखेगा इन सब को सामना करने के लिए, और आपको खड़ा करके रखेगा, आप गिरेगा नहीं, वो आके आपको टकरा के चला जाएगा, वो वही वाला नींव है। सो बीइंग a Christian and being a follower of Jesus Christ, you know, the rain will come, ठीक है, the flood will come, the wind will blow, but we have to stand on the solid rock, ठीक है ना। यीशु मसीह कहता है, ठीक है, मत्ती 16:18 में, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह कारपेंटर है, ठीक है ना। ही यूज्ड टू वर्क एज अ कारपेंटर, एज अ एक्सपर्ट कारपेंटर। आई थिंक घर बनाने के बारे में बहुत अच्छा जानता होगा प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। इसीलिए ये बात भी कहता है, यू आर पीटर एंड ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च एंड द गेट ऑफ हेट्स विल नॉट ओवरकम इट। मतलब यहाँ में चट्टान जो है, एक्चुअली इट इज नॉट, यू नो, वो चट्टान के ऊपर अब दिख करने के लिए नहीं बोल रही है। चट्टान मतलब वही है कि रॉक बेड। ये प्रिंसिपल एक्चुअली इवन द सिविल इंजीनियर आल्सो फॉलो ना, दे टेस्ट द सॉइल, ठीक है। वो लोग डिग करता है, जब तक वो जो पक्का वाला जो जमीन नहीं मिलता है तब तक वो लोग डिग करता है। उसके बाद वहाँ में सीमेंट बैठाता है, पत्थर बैठाता है, लोहा जो भी बैठाते वहाँ से उठाते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह भी यहाँ में कह रहा है, नो बिल्डिंग अपॉन द रॉक। यहाँ में व्हाट इज द हाउस ऑन द रॉक, ठीक है ना। हम इस बात को कई बार इस
बात के लिए ले लेता है, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरा चट्टान है, हमको अंगीकार कर लेना है, इसलिए हम गिरेगा नहीं। बहुत अच्छा बात है, ठीक है, आपका विश्वास का अंगीकार करते हुए यीशु मेरा चट्टान है, हम गिरेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ में जो यीशु कह रहा है सिर्फ वो अंगीकार से खत्म नहीं होता है। वर्स 21 में अगर पढ़ेगा तो वहां में यीशु मसीह साफ साफ कहता है, मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, तो आप मुंह से कह सकता है वो मेरा चट्टान है और मैं नहीं गिरेगा, यीशु मेरे चट्टान है, मैं नहीं गिरेगा, वो मेरा चट्टान है। आप कॉन्फेस कर सकता है, आप बोल सकता है। कोई लोग बोलता है हम उसका नाम जाप लेता हूँ, हम उसका नाम याद कर लेता हूँ। यीशु के नाम जब हम प्रॉब्लम आता है हम याद कर लेता हूँ, बोल देता हूँ। नहीं, इसके बारे में नहीं है, लेकिन उसके मतलब क्या है वो 24 में मेंशन है। 24 में क्या बोला है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह का मतलब ये है कि सुनना है, ठीक है, सुनना है, उसके बाद मानता है, ठीक है। मानता है मतलब यहाँ में इंग्लिश में तो लिखा है कि therefore everyone who hears this word of mine and put them into practice मतलब करना, सुनने के बाद करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, उसी के लिए बोल रहा है। आपका घर, आपका जीवन चट्टान में रखने मतलब ये है कि आप करना जो यीशु मसीह आपको कहता है, ठीक है ना। इस बात को आप ड्रिल कर लीजिए आपका मन में, करने के बारे में यीशु मसीह ये बोल रहा है, सिर्फ सुनने के बारे में नहीं बोल रहा। ऑफ कोर्स बाइबल कहता है फेथ कम बाय हियरिंग, विश्वास सुनने से आता है, सुनना बहुत जरूरत, लेकिन यीशु मसीह बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पूरा सामान देने के बाद ये बोलता है आप पूरा सुन लिया, ठीक है, मैंने इतना जो बता दिया, लेकिन आप क्या करना है, आपको ये करना है, ठीक है, करना। जब ये करेगा तो आपका घर चट्टान में है, आपका जीवन जो है चट्टान में। यही बात यीशु मसीह बोल रहा है, एक्ट अपॉन देम, ठीक है, करने के बारे में बोल रहा है। इट इज नॉट ओनली हियर, अगर यहाँ में जो बालू के ऊपर में जो बनाए वो भी आके सुनना था। दे बोथ, ठीक है, वे लिसनिंग, दे बोथ वेंट टू द सेम चर्च, ठीक है ना, बट देन दे बिल्ड इन डिफरेंट फाउंडेशन, ठीक है ना। इस बात को हमें याद करना है। सो इसका अनुसार बिल्डिंग योर हाउस ऑन द रॉक मीन्स डूइंग व्हाट जीसस से। चट्टान के ऊपर आपका घर बनाना मतलब क्या है, जो यीशु आपको कहता है वो करना। और बालू के ऊपर जो घर बनाने के मतलब क्या है, जो यीशु आपको जो बोला है वो सुनने के बाद नहीं करना। या में सिंपल से बात है इस दृष्टांत पे, इट इज अबाउट डूइंग एंड नॉट डूइंग, ठीक है ना। बालू नॉट डूइंग, चट्टान डूइंग, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल से बात है, लेकिन ये करने में बहुत दिक्कत होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चर्च राइट नाउ। अभी समय का कलीसिया के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हम, ठीक है, सोचने लगता है हम चर्च जाते रहता है, हम जाके सुनते हैं, ठीक है ना, हम चर्च मिस नहीं करता है, बहुत अच्छा है, ये इच्छा होना बहुत अच्छा है और आना बहुत अच्छा है, लेकिन वी मस्ट आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब आप आते हैं, आप सुनते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस बात को हम लोग को पूछ लेना चाहिए। आप सोचिए एक साल में कितना संडे है, अबाउट 52 संडे इन अ ईयर, और वो 52 संडे इफ यू डोंट मिस, ठीक है, हम संडे जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से हम चर्च मिस नहीं करता है। कहीं में भी हो हम चर्च नहीं मिस करता है, हम निकाल के जाना ही जाना है, ठीक है ना। तो अगर आप काउंट करेगा तो अबाउट 20 years, दैट मीन्स अबाउट 1000 से ज़्यादा मैसेजेस हमने सुना है। लेकिन हमको पूछना है कि वो जो 1000 से ज़्यादा आप सुना है, चाहे, ठीक है ना, बाइबल डायरेक्ट पढ़ के हो, चाहे किसी के द्वारा सुना हो, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इस बात को यीशु मसीह यह कह रहा है। यीशु मसीह ने बहुत जो सामने द माउंट में बहुत सारा टीचिंग दिया था, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन लिविंग का प्रिंसिपल जो है बहुत सारा टीचिंग दिया था, लेकिन ये कह रहा है कि आपको इसको
जाकर करना है. You must put it into practice. ठीक है, आप भूलना नहीं है. ठीक है, इस बात को कह रहा है. सो यहाँ में यीशु मसीह का जो कंक्लूजन जो है, जो बोल रहा है, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपको जो सुनना है उसको करना है. याकूब का 1:22 से 25 हम पढ़ेंगे. याकूब 1 अध्याय 22 से 25 वचन. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है. सो याकूब भी कहता है कि हम लोग सिर्फ सुनना नहीं है, हम लोग को करना है. बी द डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, डू नॉट merely लिसन. ठीक है ना. ऑफ कोर्स याकूब ये भी कहता है कि क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक भी बोलता है. लेकिन यार सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ये नहीं बोल रहे कि सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सुननेगा तब आप पता चलेगा कि ये क्या करना है. That's why you must listen. आपको सुनना है. That's why we come to listen. ठीक है ना. We come to worship and we come to hear from him. हम आते हैं उसे सुनने के लिए. When we read, we pray and we ask God that we will be able to hear from him. ठीक है ना. So we hear his instruction. He saw to us his instruction, but after that you must act upon it. अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली मसीह लोग के लिए है. ठीक है. जो हम सोचता है कि हम मसीह है, जो हम सोचता है कि हम चर्च जाता है, जो हम सोचता है कि हम बाइबल पढ़ता है, जो हम सोचता है कि हम प्रेयर मीटिंग अटेंड करता है. ठीक है. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. अगर हम सुनने के बाद, देखने के बाद, इंस्ट्रक्शन पाने के बाद अगर हम कर नहीं रहा है तो हम अपना आप को धोखा दे रहा है. ठीक है ना. बाइबल बहुत क्लियर है, बाइबल क्लियर है. सो इंस्ट्रक्शन जो है, आप मान लो कि यीशु मसीह यहाँ में आपके सामने में खड़ा है और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया आपका जीवन के बारे में, आपका जो कार्य के बारे में, जो करने से आपके लिए भी अच्छा होगा, वो चीज़ आपको बोला तो आप बोला हाँ बहुत अच्छा है. ठीक है ना. थैंक यू बोल के आप चला गया और नहीं किया. यीशु मसीह को कैसे लगेगा. ठीक है ना. क्रिश्चियन कभी कभी ऐसे जीता है. यू एग्री और नॉट. ठीक है ना. हम सुनता है, हम लोग बोलता भी हाँ करेंगे, हाँ जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाता है. 2 बेटा के बारे में बाइबल में एक मेंशन है, खेत में जाओ बोलता है. ठीक है. पहले बेटा आके बोलता है हाँ हम जाएंगे पापा. ठीक है. बाद में दूसरा बेटा आता है, नहीं हम नहीं जाएंगे. ठीक है ना. लेकिन जो नहीं जाएंगे बोला बाद में खेत में चला जाता है, रियलाइज करके, रिपेंट करके. जो जाएगा बोलता है वो लोग नहीं जा पाए, नहीं किया है. ठीक है. कभी कभी हम मसीह लोग ठीक है ऐसा करता है. सो लेट अस एग्जामिन आवरसेल्फ कि Lord, Sunday after Sunday, day after day, ठीक है, when we come hear the word of God, the instruction of God for our life, what do we do? What do we do? Do we act upon it? Do we practice in it? Or do we just say, like ऐसे क्राउड है कि हाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसका वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. उसका बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. नहीं. ठीक है. क्योंकि बाइबल में एक राजा के बारे में मेंशन है. मार्कुस 1:20 में पढ़ेगा. आप जानता है कि जो हेरोड के बारे में मेंशन है. हेरोड जो है हम जानता है ही इज अ विकेड किंग. और हम जानते हैं कि यूहन्ना के यीशु मसीह के समय में था ये, और यूहन्ना को पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद उसको मार भी दिया था. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि वो उसका भाई का वाइफ के साथ वो व्यभिचार करते थे और यूहन्ना उसको जानते हुए उसको ठीक है इस बात को करेक्शन दिया, उसको बोला था. लेकिन इंटरेस्टिंगली वो हेरोड यहाँ में कहता है. ठीक है. बाइबल कहता है क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था. ठीक है. ये
जिस व्यक्ति को उसने मराया है, ठीक है ना, वो व्यक्ति का सुनना अच्छा लगता था. Yet he liked to listen to him. ठीक है, वो बहुत खरूस राजा है और वो बोलता है कि वो यूहन्ना का जो प्रचार, यूहन्ना का टीचिंग जो था वो अच्छा से सुनता था, उसको अच्छा लगता था सुनना. ठीक है, अगर वो सुनना अच्छा लगता था से अगर होता तो ये भी अच्छा बन जाता, लेकिन सुनना अच्छा लगता था से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि करना के बाद में वो रोक गया, वो नहीं कर पाए, इसीलिए वो उसका जीवन ऐसा रहा. ठीक है, सो हम भी देखिए सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना अच्छा बात है, लेकिन हमें करने के लिए परमेश्वर से क्षमता मांगना है. वी मस्ट आस्क गॉड स्ट्रेंथ टू बी एबल टू डू व्हाट वी हियर. अंत में हम इस बात को कहना चाहता है कि कैसे उस शैतान के ऊपर हम अपना जीवन या तो अपना घर बना सकता है. तो इट इज सिंपली बाय डूइंग व्हाट जीसस सेज. ठीक है, बाय डूइंग व्हाट जीसस सेज. ठीक है, जो यीशु मसीह जो कहता है, उसका जो निर्देश देता है, उस बातों को हम प्रैक्टिस करते, ठीक है, उस बात को हम लागू करते हुए उसमें जब हम जिएगा, तब हम अपना जीवन जो है वो चट्टान के ऊपर बनाते हैं. ठीक है, देन जीसस जो फिजिकली जब धरती पे इस दुनिया में था तो क्या करता है, उसका चेले लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ था, जो यीशु मसीह कहता है वो तुरंत वो लोग कर लेता था. ठीक है ना, वो तुरंत कर लेते थे. आप देख सकता है एक बात यीशु मसीह का माँ ने भी ये कहता है, यूहन्ना 2 का, ठीक है, 5 में वहाँ अच्छा बात कहता है. काना यीशु मसीह का पहला चमत्कार का दिन क्या कहता है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना. डू वॉट एवर ही टेल्स यू टू डू. यही है. ठीक है, हमें यही करना है. ठीक है ना, अगर हम अपना जीवन वो चट्टान में खड़ा होना है और हम में वो तूफान आंधी आकर टकराए कर, ठीक है, हमें टकरा कर चला गया, अभी हम खड़ा होते रहना है. ठीक है, तो क्या करना है, डू वॉट एवर ही टेल्स यू टू डू. डू वॉट एवर ही टेल्स यू टू डू. और उसका चमत्कार हम देखते हैं. वो लोग जब ओबे किया, वो लोग जब उसका आज्ञा को माना, तो हम जानते हैं कि वो वाइन जो था वो रिप्रोड्यूस किया, या तो मल्टीप्लाई किया. ठीक, वो भी सबसे अच्छा बन गया. ठीक है ना. सो अगर हमें भी, अगर हमारा जीवन जो है वो चट्टान पर बनाया हुआ जीवन जीना है, तो जो यीशु मसीह आपको कहता है उसको करना है. ठीक, व्हेन ही टोल्ड हिज डिसाइपल, ठीक है, जो 5,000 को जो खाना खिला रहा था, तो यीशु मसीह ने उसको चेला को बोला, निकालो रोटी, निकालो मछली, चलो बांटना शुरू कर दो. तुरंत वो लोग बांटना शुरू कर दिया. ठीक है ना. अगर वो लोग कह दे कि अरे सिर्फ 2 मछली है और 5 रोटी, 2 मछली और 5 रोटी, अगर वो लोग आर्ग्यू करेगा और इतना 5,000 लोगों को कैसे हम बांटेंगे. यीशु मसीह को अगर आर्ग्यू करे तो हो सकता है वो चमत्कार भी नहीं देख पाता, लेकिन क्योंकि उसका गुरु ने कहा इसलिए वो लोग किया. तो सेम चीज आज भी हम लोग को यही करना है. व्हेन यू रीड द बाइबल, यू मस्ट रीड विद दिस एटीट्यूड दैट जीसस इज स्टैंडिंग beside you and Jesus is not talking to you and instructing you to do. जैसे कि यीशु आपसे बात कर रहा है, जैसे कि यीशु आपको करने के लिए बोल रहा है, इस बात को लेगा तो हम तो आसानी से कर सकते हैं. आज यीशु फिजिकली हमारा सामने आकर, हे ठीक है जेडी ये करो, वही ये करो, हम जेडी को बोलता है, ठीक है, 1 बार बोलता है, 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, तब नहीं करते हैं तो हम मन हट जाता है ना. ठीक है, वही नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. तो यीशु मसीह अगर आज फिजिकली नहीं है तो हमारे लिए उसका निर्देश, उसका इंस्ट्रक्शन, जो सब कुछ जो हम लोग करना है हमें यह हमें दिया गया है. सो इफ वी वांट टू बिल्ड आवर लाइफ, ठीक है, ऑन द सॉलिड रॉक बेड, वी मस्ट स्पेंड टाइम रीडिंग हिज वर्ड, हिज इंस्ट्रक्शन. जब हम इसको पढ़ेगा, इसमें अध्ययन करेगा, जो भी पढ़ेगा, जो सुनेगा, जब हम करेगा वो आशीष हमें पाएगा. फाइनली, ठीक है, टुडे इफ वी वांट टू बिल्ड आवर लाइफ ऑन द रॉक, ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी मस्ट लिसन फ्रॉम हिम, गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिम,
ठीक है, get the instruction from him, ठीक है, and then the second thing is we must practice, we must act on what he has instructed us. So आज का जो दृष्टांत जो है बहुत आसान, बहुत कॉमन है, लेकिन करने में बहुत दिक्कत है, वही वाला है. जितना आसान जो हम गाता है उतना मुश्किल जो करने में है. आप एग्री करता है कि नहीं? सो इसीलिए हम कह रहा है, हम अपना आप को भी कह रहा है, let us come back, let us visit this place once again and let us put ourselves, हम अपना आप को आए हम रखेंगे, ठीक है, और हम अपना आप को फिर से जांचेंगे कि हाँ प्रभु सच में हम आपके बात, ठीक है, आप जो कहता है उस बात को बहुत हम सुनता है, लेकिन कई बार हम नहीं कर पाता है. आज मुझे सहायता करे कि जो बात जो मेरे लिए आप कहता है उसको हम करने पाए. ठीक है, आए हम आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे. हम परमेश्वर का वचन का जो आशीष जो है कहाँ में पाता है, तो हम जब करते हैं, ठीक है, करते हैं, जो सुनना है उसको जब करते हैं तो वहाँ पे आशीष हम देख पाता है. आइए हम अपना जीवन को देखेंगे, हम किसी और को नहीं देखेंगे. आज सुबह आइए हम अपना आप को देखेंगे. हम प्रभु यीशु मसीह का चेला है. हम सब ने कहीं ना कहीं सुनने के बाद ये निर्णय भी लिया है कि हाँ यीशु, आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, आज से मैं आपका हूं. इस निर्णय को हमने लिया है. अगर हम ये कहता है कि मैं यीशु का हूं, तो हमारा राजा का बातों को भी हम करना है. जो आज्ञाकारिता जो है हमारा एक जिम्मेदारी है. जो वो कहता है, जो वो निर्देश देते हैं, तो उसको हम फॉलो करना है. We must live out. We must not only talk, we must not only hear, but we must practice what Jesus taught us, what Jesus instructed us. तो आइए हमारा मसीह का जीवन जो है, हम किसी को 10 साल हो गया, किसी को 5 साल है, किसी को 2 साल है, या हो सकता है किसी को 1-2 महीना है, किसी को 20 साल हो गया. हम अपना आप को लेकर आएंगे आज सुबह परमेश्वर का वेदी में और उसको कहेंगे, प्रभु हाँ मैंने तो आपका पीछे होने के लिए निर्णय लिया, लेकिन कई बार आपके बातों का हम अनसुना कर देते हैं. कई बार आपका निर्देश को हम अनदेखे अनसुना कर देते हैं. मुझे क्षमा करे प्रभु. प्रभु जी आज फिर से इन बातों में हम फिर से ये कमिटमेंट लेना चाहता है प्रभु, कि जो बात आप मेरे लिए, मेरा भलाई के लिए जो कहता है, जो निर्देश देता है, उसको करने के लिए मुझे क्षमता दे. जैसे आपका चेला आपके ऊपर कभी भी प्रश्न नहीं किया, जो तू कहता है वो तुरंत कर देता है, ठीक वैसे मैं भी कर पाने के लिए मेरा जीवन में आपका क्षमता, आपका उस नए अभिषेक से भर दे. आप अपना आप को देख सकता है, आप अपना आप को परमेश्वर के सम्मुख में रख सकता है. हाँ प्रभु मैं क्या हूँ, मेरे हृदय में क्या है, आप सब जानता है, आप सब जानता है. मैं तो वो खोले हुए जो किताब जैसे है परमेश्वर के सामने में. मेरे हृदय में क्या सही क्या सच, क्या गंदा क्या साफ, परमेश्वर जानता है, देखता है. आए हम अपना आप को टटोले और इस बात को कहे कि प्रभु आपका इंस्ट्रक्शन में चलने के लिए हमें सहायता करें. Lord, fill us today with your strength once again to be able to walk with you, to be able to, Lord, put into practice what you have instructed us. Lord, we want to build our life upon
the rock. Lord, let our foundation be upon the rock. हाँ प्रभु, आज जो हम गाते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, इस बात को हमारे जीवन में आज लागू करते हैं, करने में हम सबको ऊपर समता दें। प्रभु हमें सहायता करे कि आपके वचन पर चलकर जीने वाला लोग बनने के लिए। हाँ प्रभु, कितना बार हम पढ़ते हैं आपका वचन, कितना बार हम सुनते हैं कि हम किसी को क्षमा करना चाहिए, लेकिन कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति हमारे खिलाफ में कुछ गलत किया है। कितने बार हम सुनते हैं, कितने बार हमें आप ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आपका शत्रुओं को भी प्रेम करो, लेकिन प्रभु सच में जब हम सामना करते हैं तो हम कर नहीं पाता है। प्रभु आज हम एज अ चर्च हम सुन लिया है प्रभु, आज के बाद से चाहे हम आपका वचन पढ़ने में हो, आपके वचन सुनने में हो, सुनने के बाद पढ़ने के बाद जब आप हमसे बात करते हैं तो उसका अनुसार चलकर जीने के लिए प्रभु जी हमें सहायता करें। हम अपने हृदय को खोल कर रखते हैं, आप हम सबको प्रभु आशीष दे। उस नए अभिषेक से प्रभु हम सबको ऊपर उंडेल दे। प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं हम सबको बात करने के लिए। हम ये कलीसिया सिर्फ सुनने वाला कलीसिया नहीं बनेंगे, लेकिन करने वाला कलीसिया बनकर आगे बढ़ेंगे। हम सबको आप आशीष दे। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। Father Lord, we come to your presence, Lord Father. We just come with a great gratitude, Lord, with a grateful heart. Thank you for this beautiful worship. Thank you, Lord, for your beautiful word, Lord Father, that our foundation is in the rock. The rock is Jesus Christ, Lord Father. Father, as we collect the offering and tithes, Lord Father, bless each and every one of them, Lord Father, as they give from their heart, Lord Father. Let them be measured according to what their intentions are, Lord Father. Bless their houses, bless their stronghold, Lord Father. Bless each and everything they desire, Lord. Bless their going out and bless their coming in. Let the entire week be fulfilled with your glory, with your blessing, because you are only the provider, Jehovah Jireh, Lord Father. Bless each and every one upon this church. Thank you so much for your blessings. Thank you so much above all for your presence upon this place. Into your mighty hand I commit. In Jesus' name we pray. Amen.